got first prize in me and my slum. Yes, student of the year. Best student of the year is Shahid. Yes, all of you say MashaAllah. Best student of the year in junior KG Shahid. Say MashaAllah. Everyone tired, I think. Best student of the year in senior KG Talha. Yes, say MashaAllah, all of you. Louder. Yes, sir. ऐसे बोलो माँ. Best student of the year in grade 1 section A Ruhi Akifa Ruhi. Akifa. Say MashaAllah. Best student of the year in first class section B Inayat. Yes, say MashaAllah. Now I'd like to call best student of the year in grade first, grade second, section A, Hadia Zahir. Yes, Hadia Best Zahir. student of the year in grade 2, section A. I get ready. I'll call you. Please stand there. Yes. Bushra, third B. Best student of the year, third B. Bushra got best student of the year award. Mashallah. Say MashaAllah. Best student of the year, grade 4, Zahurullah. Zahurullah, come fast. Best student of the year, grade 6, Mehreen Khatun. Best student of the year, grade 6, Mehreen Khatun. Best student of the year, grade 7, Ishrat Fatima and Azra. Year. Say mashallah everyone. Best student of the year in grade 7th, Azra. Best student of the year in grade 8, Mariam. Mariam. It's Mariam. Best student of the year in grade 9th, Fahad. Fahad. Best student of the year, grade 10th, Wasim Fairoz Khan.
Now I would request our MD sir to felicitate our chief guest MEO Maulali sir. Here's our next chief guest, a noble person with great wisdom. His contribution to the education is unthinkable. Let's welcome our chief guest, MEO Maulali sir, who on... Okay. A well-known politician of Kurnool, the chief guests who are there to inspire all of us by his dedicating and devoting words to our nation. Let's welcome Honorable Chief Guest DSP Mehboob Basha sir. मौके के ऊपर कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। పీస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమంలో హాజరైనటువంటి మన డిఎస్పి సార్ గారికి మరి పాఠశాల యాజమాన్యానికి హాజరైనటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ నా నమస్కారాలు, విద్యార్థులకు ఆశీస్సులు। ఈ కార్యక్రమంలో నేను కూడా భాగస్వామ్యం పొందినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను। చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఒక్కసారిగా ఇంతమంది పిల్లలకు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం అన్నది చాలా సంతోషకరమైన విషయం। సో పాఠశాల యాజమాన్యం ఇలాగే పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తూ వారికి మంచి విద్యాబుద్ధుల్ని కలిగించి వారిని బెస్ట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియా తయారు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। ఇప్పుడు అవార్డ్స్ ఇచ్చారు, బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డు ఫ్రమ్ నర్సరీ టు 10th క్లాస్। సో ఈ విద్యార్థులు నేను బెస్ట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డు కూడా పొందేలాగా మనం మన పిల్లల్ని తయారు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది। ఆ విధంగా తయారు చేయాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను। థ్యాంక్ యూ। Thank you, sir. Now I would request our DSP sir to please speak. किसके फेस में भी गैप दिखता ना है। नाश्ता करे नहीं, जल्दी आ गई। अच्छा, बहुत खुशी है। मैं पेरेंट्स आकर रहने, खास कर को मान आकर रहने से मैं थोड़े सजेशंस बोलता हूँ। क्या नहीं, मैं आको 11 साल हुआ करनूल को। ये 11 साल में पूरा ओल्ड टाउन करनूल टाउन लिमिट सब देखी कवर करी हूँ। स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सोसाइटी स्कूल सब देखी हूँ। ज़रा गौर से सुन लो, माँ समझ लो। इतने अच्छे स्कूल हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई है, हमारे बच्चे कई को नौकरियों वाले होते नहीं। कभी तो भी एक क्वेश्चन आया, मैं माँ ना पूछता हूँ, मदर्स क्वेश्चन डालने नहीं आया नहीं असल माइंड में। मैं कई को बोलता हूँ तो जनरल से मुसलमाना में, अरे मुसलमान कहाँ थी नौकरियाँ, यही क्वेश्चन रहता। मुझे 50 पर 2 साल, मुझे 52 ईयर्स। मैं बचपन से भी यही सुनता हूँ। मेरा गांव कड़पा जिला चेन्नूर। बचपन से भी मैं सुन को जाया सो, यहाँ भी सुनता हूँ
50 पर 2 साल के बाद भी यही बात सुनता हूँ। ये कहीं को जाता नहीं, ये ख्याल, ये सोच कहीं को बदलती नहीं। मुसलमान हैं कुछ अच्छे नौकरियां मिलने का, कहीं को तो मुसलमान में डिसिप्लिन ज़्यादा रहता, बच्चों को पालने में तरीके में एकदम परफेक्ट तरीका रहता। एक कमी क्या रहेगा तो आइडिया नहीं, बचपन से क्या क्या पढ़ाना, मेरा बच्चा किस में परफेक्ट, अब कराटे है, कराटे में परफेक्ट है तो उसे ऊंचे स्टेज को कैसा लेके जाना ये मालूम नहीं। ज़्यादा आदमी हमारे गोंडे, वेल्डरा, इलेक्ट्रिशियना, बंडियाँ पर बेच लेने वाले ज़्यादा रहते। उन्हें फजरजा को शाम को आता, अब खा ले को थक को सोया था, उसे मालूम नहीं उजाला हुआ तो क्या क्या करना, कहाँ पैसे आते, कहाँ माल मिलता, ये परेशानी में रहता बंदा। अब घर में बैठा, घर पार होकर बाहर आते नहीं, उनको क्या मालूम होता नहीं। यहाँ एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी भी ऐसा गोंडे अंग बच्चे गोंडेज, इलेक्ट्रिशियन अंग बच्चे इलेक्ट्रिशियनाज, ऐसा चलता है सिलसिला। ज़रा यहाँ से तो भी बदलेंगे। ये पी स्कूल में मैं एक 3 महीने के आगे भी आया था, मैं वॉलेंट्री से मैं गई हूँ झाड़ा बांटने। मैं ज़रा झाड़ा पालने के शौक़ ख्वाहिश ज़्यादा, वैसा गए टेम्पो मैं देखा था ये स्कूल की हालत, माहौल क्यों है, सो बहुत अच्छी है, इसमें अच्छा दिन का माहौल ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ हमना को रोज़ी रोटी देने का भी एक वो भी साथ है तो परफेक्टनेस रहता। हमारे भी, हमारी कौम भी सब कौमा के बराबर रहने के वास्ते चांस रहती। अब बोले इस पहले बोले सो उनके व्यापारी में, उनके काम में, रोजी रोटी में बिजी रहती। ज़रा मानो फ्री रहती माँ, ज़रा तुम्हारे बच्चा के बारे में आको स्कूल को पूछ लो, टीचर आंसर हो, नहीं तो तुम्हारे बाड़े में कौन तो गवर्नमेंट टीचर्स रहती, अभी दूसरे एम्प्लॉयज़ रहती, उनसे शर्मा नहीं सर का, डरे नहीं सर का, मेरे बच्चे को क्या पढ़े तो अच्छा रहता बा, मेरे बच्चा किस में अच्छा होशियार है, ये ज़रा पूछ लेना आदत करे तो तुम्हारा बच्चा बच्ची की कैपेसिटी क्या है कहने का तुम्हें अंदाज डाल सकते। उसे अब से 5 क्लास से 7 क्लास से उसका रास्ते को क्या क्या ज़रूरत है कहने का एक माइंड में पड़ा तो वो ढूंढ लगी तो फिर छोड़ देने, वो नहीं मालूम नहा को। ऐसा इसमें ज़रा स्कूलों को ख़ास कर को मानो आते हुए बच्चों के बारे में मालूम कर लेते। पेरेंट्स डे को कहते जाने जाती माँ स्कूल को, हाथ उठाओ। पेरेंट्स डे रखते रहते हैं क्या? महीने के एक बार रखते, महीने के एक बार, महीने को एक बार कहते जाने जाती माँ। यहाँ कम सरस 100-150 जने हैं, 20-25 जने जाते हैं। अब तुमने क्या मालूम होता है माँ डाउन, तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है, किस में होशियार है, क्या कमी है, क्या मालूम होता? घर में से ज़्यादा स्कूल में बच्चा गुजारता रहता वक्त। टीचर मालूम होता तुम्हारा बच्चा क्या करता है, बच्ची कैसी है कहने का। वो टीचर से तुम्हें ज़रा टाइम ये कर ले को पूछ लेते गए तो तुम्हारा बच्चा भी एक नौकरी वाला गारंटी बनता माँ। एक गोंडा काम करने वाले के घर में एक नौकरी वाला बच्चा है तो वो ख़ानदान ज़बरदस्त बन जाता। हाँ सी मुसलमान के इसमें चेंजेस आना शुरू होते, वो सोच ही रहती नहीं। वो ज़रा आना कर को मैं भी स्कूल में जाना, बात करना, पूछना,
परसों उर्दू स्कूल को गया था मैं, उर्दू बाय स्कूल गड़ियाराम हॉस्पिटल का ने, उसमें स्कूल कमेटी के एक मेंबर थी औरत। मैं उनसे बात कर, वो क्या करते हैं माँ तुम्हारे बच्चे का? तो हैंच पढ़ते हैं वाह 2 बच्चे। वो बोली मैं दूर से दे, वो बच्चा मेरा वहाँ है देखो गए, वो बच्चा अच्छा ऊंचा है, 8 क्लास कुछ ऊंचा है, तो पुलिस के इसमें ज्वाइन करे जाने के हमारा ट्रेनिंग को गए, तो मेरे मर्द गोंडा काम करता बा, हम ना कहाँ होती पैसे खाने बस होते नहीं ऐसा। मुझे नौकरी आको 30 साल 90 में, 30 साल के पीछे भी मेरा बड़ा भाई यही बात बोला मुझे, अरे पुलिस में एसआई को हम ना कह क्यों रहे, हम ना कहते क्या, हमारी हैसियत क्या? देखो मेरा बड़ा भाई मुझे बोला, वही बात मैं 30 साल के बाद उर्दू बाय स्कूल में सुनी। फिर वो बच्चे को बुला को वो बच्चे से बात करें, क्या बनता बेटा तू बड़ा होगा? तो मैं आईएएस बनता सार गया उन्हें। अरे ये कह रहे आईएएस कहता है, मामूल से सब बोल लेते सो, मैं डॉक्टर हो तू, मैं लॉयर हो तू, मैं इंजीनियर हो तू, ऐसा बोलते सो वैसा बोलेगा कि बच्चा कर को मैं आईएएस का तो क्या बेटा आ गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या? वो कौन रे कहने का, उससे क्या नौकरी आती है? तो कलेक्टर की नौकरी आती सर। कलेक्टर का काम क्या रहेगा? तो उन्हें क्या ड्यूटियाँ करता, कैसा रहता, सब बोलाता है उन्हें। अरे इसके दिल में कितना ये है, जज्बा है, नॉलेज है कर को। मैं जब भी वो बच्चे को बात कर को, तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बना नहीं तो भी मैं कोसी के एक नौकरी वाला गारंटी बनता, अब से ये रास्ते में चलाओ कर को बोली। वहाँ से उन्होंने वारम में 10 दिन में फ़ोन करना, वो बच्चे को गाइड करना, ऐसा चलता है। ऐसा हर एक बच्चे में भी एक ये रहता है माँ, उसे हमें खास कर को टीचर को मेरा रिक्वेस्ट, स्कूल घर से ज़्यादा स्कूल में रहते हैं बच्चे, तुम्हारे ख़ास बच्चे कर को समझ को, एक बच्चे में क्या क्या टैलेंट है ज़रा नोट करो। उसमें हैसियत वाले हैं तो उन्हों कर ले सकती, नए हैसियत वाले हैं तो कौन तो भी डोनर्स को, अभी कौन तो भी सामने आने वाले हैं बहुत जने कर्नूल में अच्छा पढ़ते सो बच्चों को सपोर्ट करने, वैसे आदमी को हमें साथ दिया सरकार करते हैं। कौन भी हिम्मत हारो न को, पीछे हटो न को, हर एक बच्चे में क्या कि एक टैलेंट रहता, उसे हमें देखना, पहचानना, वो काम करे तो ज़रूर हर एक जने भी नौकरी वाले होती माँ। बच्चों को बीचा में पढ़ाई बस करो न को, पढ़ाओ, खास कर को औरत बच्चों को बहुत चांसेस है उनको। क्या मैं कहता जाना है, जल्दी है ओके। अच्छा माँ क्या कि मेरे दिल में ऐसा आता, ऐसा हमारे मुसलमान है इस टेम्पो बोलना कहा था, क्या तो भी ऐसा पुलिस इलेक्शन में इसमें आने का है तो भी मेरा नंबर रख लो, उसके बारे में मैं गाइड कर सकता हूँ, सजेशंस दे सकता हूँ, सपोर्ट भी कर सकता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लो, 9 4 9 0 6 1 6 3। फिर एक बार बोल तुम, 9 4 4 0 9 0 6 1 6 3। मेरा नाम महबूब बादशाह, डीएसपी स्पेशल पुलिस। ऐसा क्या तो भी कई साहब बोले तो गैर खौमा वाले 5 क्लास से जो बच्चे को शुरू करते हैं, कोचिंग ट्रेनिंग क्या क्या सिखाना, सो डॉक्टर बनना को जब से शुरू करते हैं। हमारे आदमी इंटर डिग्री हो गए के बाद आती मेरे खाने, वाह मेरा बच्चा डिग्री कर को है, क्या तो नौकरी दिलाओ कर को, ऐसे रहती माँ। उस आपसे होशियार पढ़ो सब जने भी
अल्लाह के फजल से हर घर में एक नौकरी वाला होने के चांसेस है। और ये स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई, इतने अच्छे बच्चों को दीन का इल्म देते हुए भी पूरा उनको सक्सेस रूट में लेके जाते हैं इसको, हमारे नासिर भाई को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर। सर का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस इनविटेशन के ऊपर लब्बैक बोल करके यहाँ पर आए हैं और हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे बातें बता करके बहुत हौसला अफजाई बढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे पास 2 इवेंट्स बाकी हैं। मैं हमारे डीएसपी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सर सामने बैठ करके बच्चों को थोड़ा इंकरेज करें, प्लीज़ सर। लेके जाओ सर। Premiumbeat.com. Make the ground shake. Our life actually is a drama and we are playing our role assigned to us by the God.
I would like to call Rehan Laik and group to perform an act on the freedom fighter Ashfaqullah Khan. हमारे हिंदुस्तान में बहुत से आज़ादी के लिए लड़ने वाले रहनुमाओं को अब जानते हैं, मगर मैं अब इनके बारे में बताना चाहती हूँ जिनके जद्दोजहद आज़ादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है अशफाकुल्लाह खान। अब मैं आपके सामने 19वीं सदी के हालात को पेश करने जा रही हूँ। 19वीं सदी का ऐसा दौर था। इनक़िलाब जिंदाबाद, 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 इनक़िलाब जिंदाबाद। जहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर तरफ अंग्रेज़ी हुकूमत का जुल्म सितम था। इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद। इन्हीं हालात के दौरान 22 अक्टूबर 19वीं सदी को शाहजहांपुर के एक पठान ख़ानदान में अशफाक पैदा हुए। अशफाक अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनमें जज्बाए वतन बचपन ही से मौजूद था। देशभक्तों की कहानियों को सुनकर इनमें धीरे धीरे क्रांतिकारी एहसास पैदा होने लगी। अशफाकुल्लाह एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो क्रांतिकारी के आला ओहदे पर हों। इनकी तलाश को पूरा किया इनके भाई रियानतुल्लाह खान ने। इनको राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान लग रहे हो? क्या बताओ, मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से शुरुआत करूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का जुल्म सितम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मेरी नज़र में ऐसा एक शख्स है जो तुम्हारे इरादों को पूरा करने में मदद कर सकता है। बिस्मिल की क्रांतिकारी किस्सों को सुनने के बाद अशफाक बिस्मिल से मिलने को बेताब हो गए। समय ने करवट ली। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अशफाक और बिस्मिल जिंदाबाद इनक़िलाब जिंदाबाद। रुको रुको, ये मेरे भाई है, इनका नाम अशफाकुल्लाह खान है। लिए हथियार, दुश्मन ताक में बैठे उधर और हम तैयार सीना लिए बैठे इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ एक कातिल में है। जिगर में छुपाए लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने कैफियत दिल की। तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मैं तो हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों का नामो निशान मिटाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ों का नामो निशान मिटाने के लिए हमें हथियार की ज़रूरत है। मुझे खुफिया लोगों से पता चला है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान का पैसा लूट कर रेलगाड़ी में ले जा रहे हैं। लूटना है तो क्यों ना हम सरकारी खजाना ही लूट लें। चलो मंसूबा बनाएं। इन लोगों को हथियार खरीदने के लिए रुपयों की कमी की वजह से उन्होंने खजाना लूटने की साजिश की। अशआर कहते हुए आगे बढ़े। अब बस करो, बहुत हो गया। अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है। जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद। मैम इनमें से एक गद्दार ने ब्रिटिश को जाकर जानकारी दी। ब्रिटिश फौज ने इन सबको गिरफ्तार किया।
अशफाकुल्ला खान को फैज़ आबाद जेल में नज़रबंद किया गया था और इनके खिलाफ मुक़्ता दर्ज किया गया था। जेल में ही अशफाकुल्ला खान ने तिलावत कलाम पाक की और बाकायदगी से अपनी दुआएं कहना शुरू की और रमज़ान के इस्लामी महीने में सख्ती से रोज़ा रखा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दुख साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहता है फिर आऊँगा, ले नया जन्म ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूँ पर मज़हब से बंधा जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली पहला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांग लूँगा। चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। लखनऊ के पुलिस सुपरिटेंडेंट खान बहादुर खान अशफाक से मिलने आए और कहा, अस्सलाम वालेकुम अशफाक, खैरियत? वालेकुम सलाम। मैं तो ठीक हूँ मगर हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे? अगर तुम हमारी सरकारी गवाह बन गए तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। मुसलमानों का एक ही कौल है, जान जाए पर ईमान नहीं जाए। अब आपका फैसला अदालत में ही होगा। ठीक है, जो होगा वो देख लिया जाएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है। Respected Lord, can I start? These freedom fighters have started a revolution to uproot British Raj from India through armed struggle. These people have convicted by the crime. What is your last wish? कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखलाएंगे, आजाद ही हो लोगों ये सर ही कटा देंगे, हटेंगे नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ाएंगे। मेरा ये आखिरी पैगाम है अपने देशवासियों के लिए, भारत माता के रंग और मंच पर हम अपना पार्ट अदा कर चुके, सही गलत जो कुछ भी किया अपनी देश की आज़ादी के लिए किया। हमारे इस काम की कोई तारीफ करेगा कोई निंदा, हमारे एहसास और वीरता की चर्चा हमारे दुश्मनों को भी करनी पड़ेगी। देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। The final hearing of this case is as follows that they should be hanged till death. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुई खातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुई खातिल में है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद
यस, अभी आप देख रहे थे कि किस तरह हमारे शहीदों को किस तरीके से अंग्रेज़ फांसी पे चढ़ा दिए हैं। और एक छोटा सा नमूना है, ऐसे कई शहीद हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे हिंदुस्तानियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो उन सबको याद करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमारे भी कुर्बानियाँ इस देश के लिए देना चाहिए इंशाअल्लाह, जब भी ज़रूरत पड़े। तो इस प्रोग्राम के साथ हमारा आज का जो सेलिब्रेशन है ख़त्म होता है। बट आप सब जाने से पहले आप सबको एक छोटी सी 2-3 बातें बता दूं। वो ये है कि इंशाअल्लाह मार्च 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह बुक्स दिए जाएंगे। आप नेक्स्ट ईयर के लिए नए बुक्स लेने की पूरी कोशिश करें। मार्च 2 वीक में आपके बुक्स आ जाएंगे आपके बच्चों के, तो फ़ौरन आप आकर के जल्द से जल्द अपने बुक्स ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगले साल से हम लोग 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक नीट फाउंडेशन के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। IIT जो होता है इंजीनियरिंग और मेडिसिन के ताल्लुक़ से जो क्लासेस होते हैं, वो फाउंडेशन क्लासेस इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये किसी बच्चे को पसंद है, किसी बच्चे को पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे उन सब बच्चों को IIT और नीट फाउंडेशन के क्लासेस पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे स्कूल में इस साल से कराटे के भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने बच्चों का नाम भी एनरोल करवाइए, जो बच्चों के नाम कराटे में नहीं है ऐसे बच्चों को आप अपना नाम लिखवाएं अपने बच्चों का, क्योंकि ये कराटे जो है सिर्फ कोई पंच मारना या नहीं तो कोई पोज दिखाना इस तरीके से नहीं, सेल्फ़ डिफेंस के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में भी हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी। इंशाअल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि आप इन सारे चीज़ों को गौर व फिक्र करते हुए अपने अपने हिसाब से जो है स्कूल को कोऑपरेट करें और आप बच्चों को इंकरेज करते रहें। अल्लाह आप सबको जज़ा खैर दे। उनको सुनाए हैं और माँ बाप को भी अच्छे अच्छे बातों के साथ उनको हौसला अफजाई बढ़ाए हैं। तो अच्छे से मेहनत करें हम सब। आप जैसे कि जानते हैं फ़र्स्ट इस्लामिक स्कूल है करनूल के अंदर, जो इस तरीके से 70 बच्चों से लेकर के आज अल्हम्दुलिल्लाह 550 बच्चे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी सी बिल्डिंग दे दें जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ के इंतजाम बच्चों के लिए कर सकें। अल्लाह आप सबको जज़ा खैर दे। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टू से वोट ऑफ थैंक्स। It gives us, first of all, we would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this celebration a successful event. I would like to thank our chief guest who honored this function with their inspirational thoughts. I would like to thank our respectable Principal Ma'am, Coordinator Ma'am, respectable MD Sir, AO Sir, dignified teachers, students, participants, and last but not the least, our beloved audience for making the function a grand success. Hope that you all enjoyed the performances and presentations. I would like to thank one and all for giving your precious time and be a part of this event. I would heartily congratulate all the members who have contributed to the success of the program. Thank you so much everybody for giving your valuable time and getting with us to celebrate this event.